प्रभु भोज के सेवा में हम आगे बढ़ते हैं। Let us proceed in the Holy Communion. हम देखते कि यीशु मसीह जॉन और पीटर को बोलते हैं The मेरे Lord लिए- Jesus told Peter and John कि जाके मेरे लिए प्रभु भोज की तैयारी करो। that go and prepare for the supper, Last Supper. और वहाँ पर हम देखते कि 12 चेले वहाँ पर रहते हैं। 11 या होते हैं या 12 होते हैं। And then there were 12 disciples. मैं देखता हूँ कि वहाँ पर हम ये सीखने मिलता है कि 12 चेले होते हैं जो योदस कार्य जो उसको धोखा देने वाला था है। That we see that there were 12 disciples and Judas Iscariot also was there with them. मैं देखता हूँ कि यीशु मसीह वहाँ पर उसका भी पैर धो रहा है। And we see that Jesus washed the feet of Judas too. मैं देख रहा हूँ कि जीसस उस टाइम पे भी उसको लव कर रहा है। We see that even at that time Jesus loved him. और ये हमारे लिए एग्जाम्पल है मेरे प्रिय भाई और बहनों And dear brothers and sisters, this is a great example for each one of us. कि जैसा फिलिपियंस चैप्टर 2 में लिखा है, फिलिपियंस 2 उसका 6। We'll read from Philippians 2 and verse 6. Having this attitude, Who, although he existed, having this attitude as in Christ. 5. verse 5, have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus. हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। And here we have been asked to have the same attitude as Jesus had. और हम देखते हैं कि यहाँ पर पौलुस बता रहा है कि वही सेम एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए। And we see that Apostle Paul is asking us to have the same attitude as Jesus had. आपको पता है गैलेशियंस 6:3 में क्या लिखा है? Do you know what's written in Galatians 6 and verse 3? यदि कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है वो अपने आप को धोखा देता है। 6 और 3 गैलेशियंस 6:3। For if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. मैं बहुत बार इस तरह से प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर ऐसा कोई थॉट है जो मेरे अंदर मैं कुछ भी नहीं हूँ बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ हूँ, और प्राइड वाला थॉट प्लीज़ मुझे बताओ। I pray to the Lord and tell him many a times that, Lord, if there is a thought in me, if I'm thinking that I'm something when I'm nothing, then please forgive me. मुझे बताओ, मुझे रिवील Please करो। let me know. सो इस तरह से हमारा अपने आप को हम जांच सकते हैं। So we can examine ourselves in such a way क्या हम जिस तरह यीशु मसीह के अंदर एटीट्यूड था वो एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए। we should examine ourselves and see if we have the same attitude as Jesus had. और हम पहले कोरिन्थियंस 11 में देखते हैं, And we can see in 1 Corinthians chapter 11 ग्यारह उसका 26। and verse 26. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. क्योंकि जब तक तुम रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। 27। Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner shall be guilty of the body and the blood of the Lord. But इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि अनुचित रीति हमको प्रभु का बोझ जब हम लेते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि ये अनवर्दी या एक अनवर्दी मैनेज जैसा नहीं होना चाहिए।
So, whenever we partake of the bread and the drink, then we should be sure that we do not partake of it in an unworthy manner. और 28 में लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, वो किस रीति से रोटी खाए और कटोरे में से पिए. And verse 28 says, But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब मैं प्रभु भोज कई टाइम पहले एक बार मेरे साथ इस तरह से हुआ था. Many years back, it so happened with me while partaking of the bread and wine. ब्रदर जॉर्ज वेंगल के घर पे प्रे होता था जब भी. When the meetings were held in Brother George's house, अब जब उधर प्रभु भोज कर रहे थे, प्रभु भोज लेने वाले थे, when I was to partake of the cup and of the bread, और उस टाइम पे मैं अपने आप को जांच रहा था कि प्रभु मेरे अंदर ऐसा कोई सीन है तो प्लीज मुझे बताओ. and at that time I was examining myself. If there is any sin in me, Lord, let me know. और एक सीन मेरे सामने आ गया And there was one sin that came before my eyes. और परमेश्वर ने बोला उसको फोन करा और उससे बोल सॉरी करके. And the Lord told me that, why don't you phone that person and tell him that you are sorry? और वो मेरा सगा भाई था. And that was my own brother. और उस टाइम पे मेरे थॉट ऐसा आ रहा था कि मेरा भाई अभी चर्च में रहेगा, फ़ोन नहीं उठाएगा, तो मैं अभी फ़ोन करके कोई मतलब नहीं. And that time this thought came to me that my brother would be in church, so he wouldn't pick up the phone when I give him a call. बट प्रभु मुझे इनकरेज किया. मैंने फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद मेरे भाई ने फ़ोन उठाया. मैं इमीडिएटली बोला, भाई ऐसा मैंने किया, आई एम रियली सॉरी. And the Lord encouraged me to phone, and I phoned my brother, and he picked up the phone, and I told him that these are the things that I've done against you, please forgive me. और मेरा मतलब क्लियर हो गया. And that thing was cleared between us. परमेश्वर के सामने जाके मैंने माफ़ी करो और मुझे माफ़ करो. And I asked the Lord to forgive me also. और मैं देखा कि मेरे को लगा प्रभु बोझ खत्म हो गया रहेगा इतना टाइम तक. मेरे को लगा प्रभु बोझ खत्म हो गया रहेगा, मैं इतना जब भाई से बात कर रहा था. So I thought that this communion would have been over by the time I went to speak to my brother. और मैं बात करके अंदर गया. अब मैं सोचा भी नहीं, मेरे को लगा शायद मेरे को प्रभु बोझ नहीं मिलेगा, नो प्रॉब्लम. When I went back into the room, I thought that the communion must be over. So I was ready not to partake of पर it. मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर और एक गाना चालू है प्रभु बोझ का. But I saw that another song was being sung. और देखते कि अगर हम परमेश्वर को ऑनर करेंगे तो परमेश्वर तुम्हारा ऑनर करेगा. And I realized that when you honor the Lord honors you. और मैं बाद में जाके प्रभु बोझ लिया. And then I partook of the communion. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमको अपने आप को जांच करना चाहिए, बताना चाहिए. मैं ये नहीं बोल रहा कि हम अननेसेसरी चीज़ खोजते रहो, बट जब परमेश्वर हमको रिवील करता है, जब बताता है कि विजय ये ऐसा सा पाप को तेरे जीवन में है अभी भी, इसको क्लियर नहीं किया, तूने शॉर्ट आउट नहीं किया, उस भाई से जाके माफ़ी नहीं मांगा, उसके लिए तेरे मन में या थॉट में जलेसी थॉट है उसके बारे में, तू रिपेंट नहीं किया. So I don't say that you need to dig up a lot of things, but whatever the Lord reveals to you and tells you that maybe your relationship with somebody is not right, deal with that and come and partake. तो लिखा है 31 में, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते. It says in verse 31, but if we judged ourselves rightly, we should not be judged. देखो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को जज करें, अपने आप को परखे. प्रभु मुझे दाऊद बोलता है कि परमेश्वर मेरे अंदर ऐसा क्या चीज़ है मुझे बताओ, मेरा हृदय को ढूंढो, सर्च करो, सर्च माई हार्ट लॉर्ड एंड शो माई विकेडनेस इन मी. So the Lord desires that we judge ourselves, and like David said, search my heart and see if there be any wicked way in me. तो परमेश्वर हमको बताएगा, हमको हेल्प करेगा. And the Lord will reveal that to us. और हमारा एटीट्यूड सेम जिस तरह होना चाहिए जिस तरह यीशु मसीह का था, हम्बल एटीट्यूड. And we'll be able to have the same attitude that Jesus had, a very humble attitude. और हम जो बॉर्न अगेन है, जो रियल में परमेश्वर को अपना जीवन को सौंपा है, जो बॉर्न अगेन है, वो इस बाग में सहभागिता ले सकते हैं. Those of us who are born again, truly we can partake of this communion. और एक इच्छा है कि दिन प्रतिदिन परमेश्वर के लिए मैं जीऊँ और खुद के लिए मर जाऊँ,
And those who have a desire that you want to live for the Lord and die to your own self, और ऐसा हम कोई भी आपके जीवन में ऐसा पाप लग रहे हैं तो आप पश्चाताप कर सके, मन फिरा सके, ऐसा इस तरह से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे माफ़ करो, और परमेश्वर इमीडिएटली माफ़ कर दिया, जैसा अभी हमने 1 John 1:9 में पढ़ा। just like we read in 1 John chapter 1 and verse 9, we can confess it before the Lord and the Lord will forgive us. और परमेश्वर हमको माफ़ करेगा और हम सब इसमें सहभागिता ले सकते हैं। And then we can partake of this communion. या हम आंखें बंद करते हैं। Let's close our eyes.